نواز شریف کا پنجاب میں بجلی بلوں میں ریلیف کا اعلان. پنجاب میں 500 یونٹ تک بجلی صارفین کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا. قائد نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے کہا ہے کہ وہ باقی صوبوں کے ساتھ بھی اس پر بات کریں. نواز شریف کا پنجاب حکومت کے ذریعے بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف. انہوں نے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بلوں میں 0 سے 500 یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں میں سے 14 روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے. انہوں نے اپنے مختلف شعبوں سے جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کیا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کو بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ ناقابل معافی ہیں وہ لوگ. چند ججوں نے مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن نواز سے 10,000 درہم تنخواہ نہیں لی، اس لیے مجھے نکال دیا. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس پہ ایک وزیر اعظم کو نکالا جا سکتا ہے؟ نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر انہیں نہ نکالا جاتا تو ڈالر 104 روپے سے مہنگا نہ ہوتا، آج مہنگائی بھی نہ ہوتی. ہمارے زمانے میں بینک کا انٹرسٹ ریٹ تو 5.25% ہے. 5.25. کون ہے جو اس کو 22% پر لے کر گئے؟ کون اس ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ کون انڈسٹری لگائے گا؟ نواز شریف کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ 2017 میں بجلی کا بل 1600 روپے اور آج 18,000 روپے آ رہا ہے. غریب کہاں سے بجلی کا بل دے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ یونٹ کے نرخ میں کمی نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا احسن اقدام ہے. نواز شریف کی قیادت میں معاشی استحکام کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت اخراجات میں کمی سے متعلق اہم اجلاس. کہتے ہیں قومی خزانے پر بوجھ بننے والے اداروں کو ختم یا نجکاری کی جائے. اجلاس میں 1,50,000 خالی اسامیاں ختم کرنے کی سفارش. پی ٹی آئی رہنماؤں کا نواز شریف کی گفتگو پر رد عمل. حماد اظہر کہتے ہیں عوام دشمن ITC کے معاہدے آپ کے دور میں ہوئے. بانی پی ٹی آئی کے دور میں ترقی کی شرح 6% تھی. مشیر خزانہ KP مزمل اسلم بولے قوم کو یہ بھی بتائیں شہباز شریف نے بجلی کی قیمت کہاں تک پہنچا دی؟ آپ کے بھائی نے شرح سود 11.5 سے 22% پر پہنچائی. میاں صاحب کیونکہ ابھی بھی ماضی میں رہتے ہیں، بجلی کے بلوں پہ بات کی کہ میرے دور میں ریٹ یہ تھا اور اب ریٹ یہ ہے. میاں صاحب آپ کو شاید یاد نہیں کہ یہ عمران خان کے دور سے جب 16.5 روپے ایوریج ریٹ تھا بجلی کے یونٹ کا اور آج 60 سے 70 روپے پر وہ جا چکا ہے. تو یہ آپ کے پچھلے 2 سال میں گیا ہے. یہ پچھلا جو 2 سال ہے یہ آپ کا ہی دور تھا نا. آپ کا بھائی آپ کی بیٹی حکمران ہے تو یہ آپ کا ہی دور ہوا. یہ آپ نے سازش کر کے دور لیا، یہ آپ نے ڈیل کر کے یہ جو اپنی حکومت لی ہے اپنے بھائی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے. سابق IG جیل خانہ جات پنجاب شاہد سلیم بیگ گھر پہنچ گئے ہیں. ذرائع کے مطابق شاہد سلیم بیگ کو 2 دن تفتیش کے بعد رہا کیا گیا. مرزا شاہد سلیم بیگ نے حراست میں لیے جانے کی خبروں کو غلط قرار دے دیا ہے. مشرف شاہ سے اس حوالے سے بات کریں گے. جی مشرف شاہ بتائیے گا. جی بالکل، سابق IG جیل خانہ جات پنجاب شاہد سلیم بیگ کی اپنے گھر میں موجودگی کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ان کو گھر میں کھڑے چائے پیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. مرزا شاہد سلیم بیگ نے ویڈیو بیان میں خود کو حراست میں لیے جانے کی خبروں کو غلط قرار دیا ہے. مرزا شاہد سلیم بیگ کا کہنا تھا کہ وہ ابھی زیادہ بات نہیں کر سکتے مگر وہ گھر پر اہل خانہ کیمرہ موجود ہیں. واضح ہے کہ مرزا شاہد سلیم بیگ 5 سال IG جیل خانہ جات پنجاب کے عہدے پر فائز رہے ہیں. ان کو نون لیگ کے دور میں حکومت میں IG جیل خانہ جات تعینات کیا گیا تھا اور ان چند افسروں میں سے تھے جن کو تحریک انصاف کے دور حکومت میں تبدیل نہ کیا گیا تھا. آج صبح سے ان کے سازداروں کی طرف سے حراست میں لیے جانے کی خبریں چل رہی تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں تردید کی ہے. جی بہت شکریہ مشرف شاہ. دوسری جانب کرپشن کے الزامات پر KP کے وزیر شکیل خان کو ہٹا دیا گیا. گورنر فیصل کریم کنڈی نے کابینہ رکن کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے شکیل خان کو صوبائی کابینہ سے برطرف کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے.
सूबाई वजीर ने एक रात पहले अपना इस्तीफा समाजी राब्तों के फोरम के जरिए वजीर आला को अरसाल किया था। ताहम वजीर आला के मशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ के मुताबिक शकील खान को करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत और तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर बरतरफ किया गया है। रिपोर्ट बनी है शकील और CNW महकमे के हवाले से। एक महकमे कोई शिकायत उसके बारे में थी ना, और तो बात नहीं थी, उसके बारे में रिपोर्ट बनी है। तो जाहिर है इस रिपोर्ट का सारा जो दायरा है वो है, इहाता है वो इस एक पर्टिकुलर वाक़े को किया जा रहा है। अगर किसी और के बारे में आती है डेफिनेटली वो उसके खिलाफ भी काम यही होगा। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने चंद रोज पहले अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की थी, जिसके बाद सूबाई हुकाम की जानिब से रोके जाने के बावजूद सूबाई महकमों में बदउनवानी और बदनिज़ामी के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मुस्तफी वजीर का कहना है पार्टी पॉलिसी के मुताबिक करप्शन, खराब हुक्मरानी, बदउनवानी और बदनिज़ामी के खिलाफ असम्बली समेत हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है जिसने भी सूबाई हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया, तहरीक इंसाफ ने इसी के खिलाफ कार्रवाई की। बदउनवानी की चार्जशीट पर चाहिए था कि वजीर आला मुस्तफी होते, लेकिन शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा शकील खान के हक में सामने आ गए। आतिफ खान कहते हैं शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर ने कहा, हल्फन कहता हूँ शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी आज तक उनके पास जाती गाड़ी नहीं है। PTI पंजाब 2 ग्रुपों में तकसीम। हम्माद अजहर और हाफिज फरहत अब्बास के इस्तीफों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एक ग्रुप ने बानी PTI से मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास को तब्दील कराया। हम्माद अजहर के मुखालिफ ग्रुप अली इम्तियाज वड़ाइच को पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कराया। हम्माद अजहर ने पंजाब के मामलात पर एतमाद में ना लेने पर पार्टी ओहदा छोड़ा। और अब आपको बताएं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अशरत नदीम के एजाज़ में GHQ में तकरीब हुई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहते हैं कि अशरत नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए फख्र हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ की जानिब से शानदार तकरीब GHQ में सजाई गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम की तारीफ। तकरीब में अरशद नदीम के करीबी रिश्तेदार, साथी और कोचेस भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ऐसी मंजिल सिर्फ सख्त मेहनत और अज़म से ही हासिल हो सकती है। अरशद नदीम अपनी कामयाबी पर पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने कहा, ना सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि नौजवानों के कीमती असासों को बाख्तियार बनाने के लिए तावन जारी रखेंगे। अरशद नदीम ने खूबसूरत तकरीब सजाने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की बहुत सलाहियत मौजूद है। तकरीब में पाकिस्तान के वो नामवर खिलाड़ी भी शरीक हुए जिन्होंने खेलों की दुनिया में अपने जोहर दिखाकर माजी में नाम और मकाम कमाया। इनमें जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसफ और इसामुल हक भी शामिल थे। तकरीब में 1984 की ओलंपिक और कौमी हॉकी टीमें, कौमी क्रिकेट टीम, स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेट और ख़वातीन गोल बॉल टीमें, कॉमनवेल्थ, सैफ और एशियन गेम्स के मेडल जीतने वाले और पेरिस ओलंपिक्स 2024 के शुरका शामिल थे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। तुर्क पार्लियामेंट जंग का मैदान बन गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान लातों घूंसों का तबादला। अपोजिशन रुकन को तकरीर करते हुकूमती रुकन ने मुक्का मारा। दर्जनों अरकान लड़ाई में कूद पड़े। अपोजिशन रुकन जेल से इलेक्शन लड़ने वाले रुकन को पार्लियामेंट बुलाने की इजाज़त देने पर तकरीर कर रहे थे। खबर आपको दे, इस हवाले से तुर्क पार्लियामेंट जंग का मैदान बन गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान लातों और घूंसों का तबादला हुआ। अपोजिशन रुकन को तकरीर करते हुकूमती रुकन ने मुक्का मारा तो दर्जनों अरकान लड़ाई में कूद पड़े। अपोजिशन रुकन जेल से इलेक्शन लड़ने वाले रुकन को पार्लियामेंट बुलाने की इजाज़त देने पर तकरीर कर रहे थे, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये तुर्क पार्लियामेंट के मनाजिर हैं जहां पर तुर्क पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। अमीर जमात इस्लामी इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं, बराह रास्त ये चलते हैं। ताकतवर होते चले गए और पाकिस्तान के अवाम कमजोर होते चले गए और अब बिजली के बिलों का ये हाल है कि सिर्फ गरीब का मसला नहीं रहा, मिडिल क्लास भी परेशान है, ताजिर भी परेशान है, काश्तकार भी परेशान है, सनतकार भी परेशान है। पूरा पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि बिजली के
इन बिलों की सूरत में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और लोग ये कहते हैं कि अब हमारे घर के खर्चे बिल्कुल एक तरफ, कि बिजली के इन बिलों की सूरत में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और लोग ये कहते हैं कि अब हमारे घर के खर्चे बिल्कुल एक तरफ और बिजली के बिल दूसरी तरफ। कोई किराए के मकान में रहता है तो किराए के मकान से ज्यादा बिजली का बिल आता है। कोई तनख्वाह लेकर आता है और उसका ये ख्वाब होता है कि मैं इस तनख्वाह से अपने बच्चों की फीस अदा करूं, किसी के इलाज और मुआवजे में खर्च करूं, या घर में अपने बच्चों के लिए कोई चीज लेकर आऊं, लेकिन बिजली का बिल उसकी तनख्वाह से भी ज्यादा होता है। ये कोई वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आगा खान फाउंडेशन के डायरेक्टर सुल्तान अली अलाना ने मुलाकात की है। सुल्तान अली अलाना ने पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों को मकामी कारोबार और बैरूनी सरमायाकारी के लिए खुशाइन करार दिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में अवामी फलाह बहबूद के फ़रोग़ के लिए आगा खान फाउंडेशन के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर में भरपूर ताउन और कंसल्टेंसी खदमात फराहम करने पर आगा खान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जनूबी पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद मकामात पर सैलाबी सूरत हाल, जिस पर अलर्ट जारी कर दिया गया। मुल्क में मॉनसून के नए स्पेल की दबंग एंट्री, कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद देहात डूब गए। शकरगढ़ में नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, चातरी रायपुर में 9 अफराद और 40 मवेशी सैलाबी रैले में फंस गए। पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। दरियाए रावी के अतराफ आबादियों को नकल मकानी का हुक्म दे दिया गया। मुल्तान, डीजी खान, भक्कर में बारिश से जल थल एक हो गया। बखर और दरिया खान में मूसलाधार बारिश हुई। 3 स्कूल्स में पानी भरने से 80 तलबा और 20 टीचर फंस गए। मोहल्ला शेखावाला के प्राइमरी स्कूल की दीवार गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम तलबा और स्टाफ को निकाल लिया गया। मुल्तान में वासा ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। कड़ी जमंदा डिस्पोजल स्टेशन पर सबसे ज्यादा 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मर्दान में मरीज को मामूली अलामात पर घर में क्वारंटीन कर दिया गया। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी इजलास में खातून के लिबास पर एतराज। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन मोहम्मद इदरीस की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर का इजलास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकबाल आफरीदी ने कहा, चेयरमैन साहब, खातून का लिबास ठीक नहीं, कमेटी में आने के लिए लिबास का कोई SOP होना चाहिए। अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है, ख़वातीन को हिरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इकबाल आफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने खातून के लिबास पर एतराज़ की मजम्मत करते हुए कहा, मर्द अरकान कौमी असम्बली को ख़वातीन के लिबास पर पुलिस मैन किसने बना दिया। वाक़या ऐसी जहनीत की अक्कासी करता है जो तंग नज़री और सनफी इम्तियाज़ पर मबनी है। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।